गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ PL सैनी। पिछले काफी टर्म से हम साथ हैं। हम बात करते हैं आज किंगडम प्रोटिस्टा की। अकॉर्डिंग टू विटेकर, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड into 5 kingdom. First group is Monera, which is a group of prokaryotic organisms. According to Whittaker, eukaryotic organisms are classified under 4 kingdoms. So first kingdom of eukaryote is protist. These are unicellular. जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि विटेकर ने और जो है टोटल क्लासिफिकेशन जो दिया उसके अकॉर्डिंग उन्होंने 4 किंगडम्स जो हैं वो बनाए उसके किसके यूकैरियोट्स के, और एक सिंगल किंगडम बनाया उन्होंने प्रोकैरियोट्स का ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल और न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट ग्रुप इज मोनेरा which possesses a less defined nucleus. So prokaryotic organisms, they classify under Monera, while other organisms have a well defined nucleus. They are classified under 4 kingdoms. Which base Whittaker classify the eukaryotic organisms in 4 kingdom? हमें ये बात करनी. तो नेक्स्ट आया ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इन अदर कैटेगरी. फर्स्ट कैटेगरी या फर्स्ट किंगडम प्रोटिस्ट, इसके बारे में हम लोग कुछ बातें करें तो फर्स्ट नेम आता है आपके पास प्रोटिस्टा. प्रोटिस्ट, इट इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज यूनिसेलुलर. सो फर्स्ट हो गया आपके पास यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स. सेकंड नंबर, देयर हैबिटेट मोस्टली एक्वेटिक. मोस्टली बोला मैं, मोस्टली एक्वेटिक. एंड third condition, they may be autotrophs or heterotrophs. तो दोस्तों हमारी बात हुई थी कि Whittaker classify the all organisms in 5 kingdom on the basis of cellular organization, body organization, mode of nutrition, mode of reproduction, evolutionary development, cell wall composition. So protist मेजर 3 कैरेक्टर मैंने आपके सामने रखे हैं इसके. फर्स्ट, दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, mostly occurs in aquatic habitat and they may be autotroph or heterotrophs. Cell wall absent or present. Next आता हमारे पास cell wall absent or present. It made up of mostly cellulose. Now the जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटिस्ट, हम उनकी बात करें तो थोड़ा सा इसी चीज को हम एक बार दोबारा रिपीट करते हैं. तो जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटिस्टा, फर्स्ट नेम आता है दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स. सेकेंड नंबर, they occurs in aquatic habitats. Third, they possesses
possesses cell wall. if और लगा देते हैं इसके साथ में, if they possesses cell wall, then it made up of cellulose. Fourth, they may be autotrophic or heterotrophic. Fifth, they reproduce asexually or sexually. Sixth, sexual reproduction by gamete fusion and zygote formation. तो ये मेजर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए प्रोटिस्ट के. प्रोटिस्ट दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, मीन्स all membrane bounded cell organelles are present. Nucleus is well defined and genetic material is also well defined or well organized. सेकेंड नंबर हमारे पास आता है, they occurs in aquatic habitat. Mostly they occurs in aquatic habitat, but some members occurs in other type of various type of habitats, such as inside of other animals and moist places where organic contents are higher. थर्ड कंडीशन हमारे पास आती है, they possesses cell wall. If they possesses cell wall, then it made up of cellulose. Cell wall, presence of cell wall is not a necessary character of protist. In some protist, cell wall is present, while in some protist, cell wall is absent. If it is present, then it made up of cellulose. Generally, chrysophyte dinoflagellate possesses cell wall, while euglenoids, slimoids and protozoans are wall-less or protistian. Next आता हमारे पास, they may be autotrophic or heterotrophic. Their mode of nutrition is autotrophic because they possess photosynthetic pigment equivalent to higher plants, and they synthesize their own food in presence of sunlight. Some members are saprophytic. They survive on dead organic compounds. They are saprophytic. And other organisms, some organisms are parasitic. They occurs inside of other organisms and produce and generate disease. So, mode of nutrition is autotrophic or heterotrophic, both occurs in protist. They reproduce asexually and sexually. Sexual reproduction occurs through gamete formation, gamete fusion and zygote formation. दोस्तों यहाँ पर कुछ बातें हमें ध्यान रखने वाली है. According to Whittaker, all unicellular organisms, eukaryotic organisms, are included in protist, but boundary line of this kingdom are not well defined, because an organism which belongs to protist is maybe member of other kingdom according to another scientist. For example, आपके पास एक नेम आता है क्लोरेला. आप लोगों ने क्लेमाइडोमोनास भी पढ़ा है, क्लोरेला भी पढ़ा है. They are also unicellular organisms, but उनको स्टडी हम लोग यहाँ पर भी कर लेते हैं और एल्गी के साथ भी करते हैं. So, boundary line of protistian
क्या किंगडम प्रोटिस्टा आर नॉट वेल डिफाइंड. According to some scientists, a organism belongs to protist, and another scientist it belongs to other kingdom. आप लोग ये मतलब भली भांति परिचित हैं ईस्ट से, विच इज ऑल्सो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक फंजाई. बट आप उसको फंजाई के साथ स्टडी क्यों करते हैं, प्रोटिस्ट के साथ क्यों नहीं रखा? तो इसकी बाउंड्री लाइंस जो हैं वो डिफाइंड नहीं है. प्रोटिस्ट को उसके मतलब ईस्ट को कभी भी प्रोटिस्ट के साथ काउंट नहीं करते हम लोग, बिकॉज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल. अभी हमने कहा कि सेल वॉल प्रेजेंट है तो सेलुलोज से बनी होगी, उसमें काइटिनस होती है इसलिए, उसकी फ्रूटिंग बॉडी अलग टाइप की होती है इसलिए, तो हमने उसको फंजाई के साथ रखा हुआ. बाकी आप क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को यहां पर भी डिस्कस कर सकते हैं और एल्गी के साथ भी. तो हमारे पास ये कुछ छोटे से पॉइंट थे किसके रेफरेंस में, प्रोटिस्ट के जनरल कैरेक्टर्स के रेफरेंस. अब नेक्स्ट देखिएगा, एक बड़ा सिंपल सा कार्यक्रम है. हम यदि एक स्ट्रक्चर देखते हैं, ये आपके पास एक प्रोटिस्ट सेल है, मीन्स ये प्रोटिस्ट सेल होगी आपके पास. आउटरमोस्ट लाइनिंग इट मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोजिक सेल वॉल. टिपिकल की बात कर रहे हैं, इट कंटेंट सेल्यूलोज. सेल मेम्ब्रेन इनसाइड ऑफ दिस पार्ट, सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, जिसको मैंने थोड़ा सा वेवी दिखा दिया है आपको. इसके बाद नेक्स्ट है ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम. बट दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, डाइनोफ्लैजिलेट्स आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट बिकॉज their nucleus is surrounded by nuclear membrane but genetic material is not well organized. क्रोमोसोम की ऑर्गेनाइजेशन उसमें वेल डिफाइंड नहीं होती. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जरूर प्रेजेंट है बट क्रोमोसोम जो है वो लेस डेवलप्ड होते हैं, लेस ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इसलिए उनको हम दोनों के बीच की कंडीशन रख देते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की. मीजोकैरियोट में आ जाता है. खैर इधर आते हैं हम लोग. तो आपके पास ये आ गई कंडीशन. इसके बाद अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट. ऑल अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट वेयर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ER आर प्रेजेंट. Secretory bodies are also present and microbodies are also present. So cell possesses all membrane bounded cell organelles. इसीलिए हमने इसको यूकैरियोट्स में डिफाइन किया. नेक्स्ट आता है एक सिंगल सेल का सर्वाइवल जो होता है वो या तो हो सकता है मोस्टली पैरासिटिक, या फ्री लिविंग हो तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में वो इजीली सर्वाइव करने में कैपेबल होता है या आराम से कैपेबल हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर हो सकते हैं बट उनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोस्ट ऑफ कैसा होता है, हेटेरोट्रॉपिक होता है. ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, सो इन्हें गैसियस एक्सचेंज रिक्वायर्ड होता है. इसके अलावा इन्हें लाइट ट्रैपिंग करनी होती है, इसलिए एक्वेटिक का एनवायरनमेंट इसके लिए सुटेबल होता है. सो दे अकर्स इन एक्वेटिक हैबिटेट्स. फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन इसमें देखा जा सकता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वही प्रोसेस होते हैं जो हायर ऑर्गेनिजम्स में देखे जाते हैं. इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्ट. हाँ तो दोस्तों मैं बात कर रहा था क्लासिफिकेशन की, प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन. इससे पहले हम लोग थोड़ी सी इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं. तो देखिएगा आपके पास फर्स्ट नेम आता है रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू सेल फ्यूजन. वो गैमेट्स हो सकते हैं, सोमेटिक सेल्स हो सकती, और जाइगोट फॉर्मेशन.
जाइगोट फॉर्मेशन। देखिएगा क्या होता है थोड़ा सा, जनरली ऑर्गेनिजम्स आर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड. Protozoans are diploid organisms and other groups members are haploid organisms. So during sexual reproduction आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि sexual reproduction require two process, first meiosis and second zygote formation. Meiosis आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमने सेल फ्यूजन बोला है. इन सेल फ्यूजन टू डिफरेंट स्ट्रेंथ सेल्स आर फ्यूज्ड एंड दे फॉर्म ए डिप्लॉइड स्ट्रक्चर विच कॉल्ड जाइगोट. सो जाइगोट फॉर्मेशन हो गया. बट इफ ऑर्गेनिज्म इज हैप्लॉइड देन आपको मियोसिस रिक्वायर्ड होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एंड इफ ऑर्गेनिज्म इज डिप्लॉइड देन आपको मियोसिस रिक्वायर्ड होगा बिफोर फर्टिलाइजेशन. सो मियोसिस इज द एसेंशियल प्रोसेस in sexual reproduction. In protist, meiosis are of two type. First आपके पास zygotic meiosis. Zygotic meiosis. In this type of meiosis or in this type of sexual reproduction, organisms are haploid. मतलब dominant stage is haploid. So after cell fusion, when two different strand cells are fused, then ये आपके पास एक हो गई पॉजिटिव सेल और ये हो गई नेगेटिव सेल, इनका हो गया फ्यूजन और आपके पास एक डिप्लॉइड सेल की फॉर्मेशन हो गई. बट आप जानते हो कि वापस आपको हैप्लॉइड स्टेज एस्टैब्लिश करने के लिए मियोसिस रिक्वायर्ड होता है. सो फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट स्ट्रैंड सेल और गैमेट resultant formed structure is called zygote which is diploid. So for re-establishment of haploid stage it divided by meiotic division और it act as zygote. तो ये हो गया आपके पास zygote और इसके अंदर बाद में क्या हो जाएगा meiosis. इसको हम बोलेंगे zygotic meiosis. When meiosis occurs in zygote it called zygotic meiosis. It occurs in gymnodinium. एक और मतलब ना प्रोटिस्ट है ZYMNODENI, Gymnodinium. It is haploid organism, so it require zygotic meiosis. But protist, in protist diploid stage is dominant. So in protozoa diploid stage is dominant. So before fertilization they form gamete like structure through meiosis. So gametic meiosis occurs in protozoans. Gametic meiosis occurs in protozoan. ये हमारे पास दो टाइप का meiosis हो गया. फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा. लोकोमोशन की हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू लोकोमोशन ऑर्गेनिजम्स possesses फ्लैजिला और सीलिया. टू टाइप्स ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन प्रोटिस्ट. फर्स्ट है आपके पास फ्लैजिला एंड सेकंड है सीलिया. फ्लैजिलेटेड और सीलिएटेड ऑर्गेनिजम्स. बट सभी में प्रेजेंट हो जरूरी नहीं है. सम प्रोटिस्ट आर नॉन मोटाइल. इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा. क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा. इसकी आपके पास 5 क्लासेस, किंगडम की 5 क्लासेस है. फर्स्ट है आपके पास क्राइसोफाइटा. सेकंड नेम आता है आपके पास डाइनो.
फ्लैजिलेट, थर्ड आपके पास यूग्लिनॉइड, फोर्थ आपके पास इसमें स्लाइम मोल्ड, और फिफ्थ है प्रोटोजोआ। नंबर 1, इन दोनों में आपने सेल वॉल देखनी है। तो वॉल्ड ऑर्गेनिज्म, यहां पर पेलिकल प्रेजेंट, यहां ओनली स्पोर पर, स्पोर possesses सेल वॉल, और लास्ट सेल वॉल इज ऑलवेज एब्सेंट, ऑलवेज एब्सेंट। तो दोस्तों एक बार हम लोग इनकी कंपैरेटिव पोजीशन देख लेते हैं, बाद में स्टेप बाय स्टेप हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला नेम आता है हमारे पास क्राइसोफाइटा, क्राइसोफाइटा। सेकंड है डायनोफ्लैजिलेट, थर्ड है आपके पास यूग्लिनॉइड, और फोर्थ है स्लाइम मोल्ड, लास्ट है प्रोटोजोआ। फर्स्ट पॉइंट, सेल वॉल प्रेजेंट, प्रेजेंट, एब्सेंट, एब्सेंट और एब्सेंट। फर्स्ट देखिएगा, क्राइसोफाइट्स, सेल वॉल इज प्रेजेंट विच मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। Dinoflagellate, they also possesses cellulosic cell wall. Euglenoids, cell wall is absent in any stage of life cycle. They covered by a proteinous envelope which called pellicle. While in slime mold, true cellulosic cell wall is present on their spores, and dominant stage is without cell wall. Protozoa, cell wall is never present. So आपके पास walled protistian only 2 and non cell walled 3. सेकेंड नंबर आता है हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बात करें, वेल डिफाइंड है, इसका मीडियम मतलब मीजोकैरियोट में आ जाता है, इसमें भी वेल है, इसमें भी वेल है, और इसमें भी वेल डिफाइंड। यहां पर मैंने न्यूक्लियस बताने की जरूर एक बार कोशिश जरूर की आपको कि प्रोटिस्टा, दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दे possesses well defined nucleus which surrounded by 2 unit membranes and genetic material is well organized. बट ये सारी स्टेटमेंट्स अदर सब पे अप्लाई होते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स में नहीं होते, बिकॉज डाइनोफ्लैजिलेट possesses nucleus membrane but genetic material is less defined, so it classify under mesokaryote, और आप इसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट मान सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड लोकोमोटरी ऑर्गन, लोकोमोटरी ऑर्गन, इसमें एब्सेंट, ऑलवेज एब्सेंट, इसमें 2 फ्लैजिला, इसमें 2 फ्लैजिला, इसमें एब्सेंट, और इसमें फ्लैजिला एंड सीलिया, ये कंडीशन। सो ध्यान दीजिएगा, फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं आपके पास 3 किंगडम में फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म, सीलिएटेड्स आपको ओनली प्रोटोजोन्स में मिलने हैं। नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यहां पर क्या आ जाता है, क्राइसोफाइटा ऑटोट्रॉपिक, डाइनोफ्लैजिलेट आर ऑल्सो ऑटोट्रॉपिक, यूग्लिनॉइड्स मिक्सोट्रॉपिक,
एंड स्लाइम मोल्ड सैप्रोफिटिक और ये हेट्रोट्रॉपिक। So mode, according to mode of nutrition, chrysophyte, they are always autotrophic. They synthesize their own food in presence of sunlight. They possess photosynthetic pigments. So autotrophic. Dinoflagellate are also autotrophic, but euglenoids, in presence of sunlight, they synthesize their food, and in absence of sunlight, they act as animal. So mixotrophic. Slime molds, saprophytic. They survive on dead organic compounds. While protozoans, they may be free living or parasitic. So they always show heterotrophic because photosynthetic pigments are always absent in their cell. ये था हमारे पास। अब अगला देखिएगा, ये एक 4 स्टेटमेंट के बेस पे हमने इसकी कंपैरेटिव स्टडी की। अब हम बात करते हैं क्लास वाइज। तो फर्स्ट नेम आता है आपके पास क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा सबसे पहले नेम आएगा हमारे पास इसका हैबिटेट। Chrysophytes are aquatic organisms. They occurs in mostly marine water as well as fresh water. They occurs in fresh water as well as marine environment, both. But they are chief producers of ocean because a large amount of food substance are synthesized by chrysophytes. They also called diatoms और डेस्मिड्स। डेस्मिड्स के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं गोल्डन एल्गी। सो ध्यान रखिएगा, क्राइसोफाइट्स in this group, diatoms and desmids are included. Desmids are also called golden algae. They are microscopic organisms, unicellular है, सिंपल सी बात है। They are microscopic organisms. They passively move with water current. Locomotory organs are absent. इसलिए locomotory organ absent होंगे तो इनकी मूवमेंट जो है किसके थ्रू होगी? वाटर करंट्स के थ्रू इधर से उधर चलते रहेंगे। So they free floating organisms in aquatic environment called phytoplanktons. देखिए एनिमल्स के लिए जूप्लैंक्टन और प्लांट्स के लिए फाइटोप्लैंक्टन वर्ड यूज किया जाता है, जो फ्रीली मूव करते हैं, वाटर के साथ फ्री मूवमेंट करते हैं, वो प्लैंक्टन्स की सीरीज में आते हैं। जू मीन्स एनिमल्स और प्लांट मीन्स फाइटो मतलब प्लांट। सो दे आर फाइटोप्लैंक्टन्स। नेक्स्ट आता है देयर सेल वॉल। स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ 2 thin overlapping envelopes or shell. They fit on each other as soap box. जैसे आपके पास एक साबुनदानी होती है ना, सोप बॉक्स होता है ना, उसमें इस तरीके से 2 पार्ट्स होते हैं और एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से एडजस्ट हो जाते हैं। सो दे कवर्ड बाय ए थिन सेल वॉल which form 2 thin overlapped shell and they fit on each other as soap box. ये कंडीशन होगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है their cell wall possesses silica या silica deposition occurs in their cell wall which form it non-destructible. इसको इजीली डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, नॉन डिस्ट्रक्टेबल। सो आफ्टर डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट एंड फॉर्म डायटोमेसियस सॉइल। दिस डायटोमेसियस सॉइल इज यूज्ड इन फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप, क्रूड ऑयल एंड ऑल्सो यूज इन पॉलिश। तो दोस्तों ये हमारे पास क्राइसोफाइट्स के कुछ कैरेक्टर्स थे। देखिए
मेन कैरेक्टर्स की हम बात करें तो क्राइसोफाइट, क्राइसोफाइट्स, हैबिटेट, हैबिटेट, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर, मरीन एनवायरनमेंट। सेकंड, हैबिटेट के बाद इसी के अंदर लिख देते, दे आर फ्री फ्लोटिंग, फ्री फ्लोटिंग organisms and passively move with water currents। इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे फाइटो प्लैंक्टन्स, प्लैंक्टन्स। लोकोमोटरी ऑर्गन्स, organs are absent। सेकंड नंबर आता है हमारे पास इसका सेल वॉल, सेल वॉल, सेल्यूलोजिक, सेल्यूलोजिक, थिन, थिन एंड फॉर्म टू overlap shell, they fit as shock box on each other। cell wall possesses silica, so it is non-destructible, and deposits in their habitat, habitats। It form diatomaceous earth due to its grittiness, it used in polishing and filtration of syrup and oil। ये हो गया इसकी सेल वॉल। नेक्स्ट आता है मेरे पास न्यूट्रिशन, autotrophic organisms, autotrophic due to their photosynthetic pigment, they appear
golden colors, golden color. So dasmids are called as golden algae, golden algae. और लास्ट पॉइंट, दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन इकोसिस्टम, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन इकोसिस्टम। तो दोस्तों बड़ा एक सिंपल सा कार्यक्रम आपके सामने, क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइट्स mostly occurs in ocean ecosystem, means marine environment. They also occurs in aquatic fresh water environment. So दोनों टाइप के हैं, मरीन भी हैं और फ्रेश वाटर भी है। पहला क्वेश्चन बनता आपका। सेकंड नंबर, दे आर फ्री फ्लोटिंग बिकॉज लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट, सो पैसिवली मूव विद वाटर करंट्स, वाटर करंट जिधर ले जाएगा उधर चले जाएंगे। दे आर माइक्रोस्कोपिक फ्री फ्लोटिंग, सो वर्ड यूज किया हमने फाइटोप्लैंक्टन्स। दे possesses a true cellulosic cell wall. With the cellulose, their cell wall also contains silica deposition, which provide extra rigidness or stability to cell wall. So after death, it deposits in their habitat and form diatomaceous soil or diatomaceous earth. इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, देयर सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैप्ड शेल, एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से ओवरलैप करते हुए शेल बनते हैं, दो पार्ट बन जाते हैं, बाई वाल हो गया। एंड नेक्स्ट, दे फिट ऑन ईच अदर एज शॉप बॉक्स की तरह से एक दूसरे में फंसे हुए होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट था डेस्मिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज गोल्डन एल्गी, बट डाइटम्स के लिए ये वर्ड यूज नहीं कर सकते आप। आपको यदि कहा जाए कि ऑल क्राइसोफाइट्स आर नोन एज गोल्डन एल्गी तो रॉन्ग हो जाएगा, ओनली डेस्मिड्स। नेक्स्ट आता है आपके पास अगला, दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन इकोसिस्टम, कंप्लीट। ये डाइटोमेसियस ग्रोथ जो है, सॉइल जो है वो आप किस में यूज में ले सकते हैं? पॉलिशिंग, जो आपके जो स्टोन वगैरह की पॉलिशिंग की जाती है उसमें, फिल्ट्रेशन ऑयल और सिरप के अंदर, तो इनमें इसको यूज किया जा सकता है। ये था क्राइसोफाइट्स। अब इसका एक क्वेश्चन बनता है बढ़िया वाला, आप देखिएगा। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम, एक क्वेश्चन बनता है इसका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फर्स्ट ए, डाइटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर of ocean ecosystem. B, chrysophytes are collectively known as golden algae. C आ जाता है आपके पास, डाइटम्स आर माइक्रोस्कोपिक फ्री फ्लोटिंग organisms in marine environment, organisms of environment. D,
cell wall of diatoms have two overlapped shell E हो जाएगा हमारे पास ड्यू टू GRI gritness diatom soil is used in cosmetics oil filtration and syrup formation. चलो ये कॉस्मेटिक हटा देते हैं. How many statements are correct? How many statements are correct? जरा देखिएगा. फर्स्ट आता है हमारे पास डाइटम्स आर चीप प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन इकोसिस्टम. बिल्कुल करेक्ट है. क्राइसोफाइट्स और डाइटम्स आर चीप प्रोड्यूसर्स ऑफ मरीन एनवायरमेंट और ओशियन इकोसिस्टम. क्राइसोफाइट्स आर कलेक्टिवली नोन एज गोल्डन एल्गी. नॉट क्राइसोफाइट में डाइटम और डेस्मिड दोनों आते हैं. डेस्मिड्स वर्ड होता तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बट इट इज रॉन्ग. डाइटम्स आर माइक्रोस्कोपिक. यस. फ्री फ्लोटिंग. यस. ऑर्गेनिजम्स ऑफ मरीन एनवायरमेंट. बिल्कुल ठीक. सेल वॉल ऑफ डाइटम्स हैव टू ओवरलैप्ड शेल. ये भी करेक्ट है. बताया अभी मैंने आपको. ड्यू टू ग्रिटनेस डाइटम सॉइल इज यूज्ड इन ऑयल फिल्ट्रेशन एंड सिरप फॉर्मेशन. गलत हो गया. बाकी तो सब कुछ सही है. फॉर्मेशन थोड़ी करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे भाई. सिरप का बनाया थोड़ी जाता है इनसे सिरप. सो ये रॉन्ग हो गया. तो इस वर्ड की वजह से ये भी रॉन्ग हो गया. सो आपके पास कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं? 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो ओनली A, C and D आर करेक्ट. 3. इसके बाद एक क्वेश्चन हमारे पास बनता है प्रोटिस्ट का. तो साथ साथ में प्रोटिस्ट का भी एक क्वेश्चन लगा देते हैं. फर्स्ट ने आता है यही क्वेश्चन है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. A. Boundary line of protista is not well defined. Second, B. Protists are either autotrophic or heterotrophic. C. Cell wall presence is a main character of protista. D. All
वॉललेस, whole wall-less protist are included in class Protozoa एंड ई को देखिएगा, protists are connecting link between plant and animals, eukaryotes and prokaryotes, fungi and plants, etc. How many statements are correct? Correct statements are, बताने आपको सही कौन कौन से। फर्स्ट आता है हमारे पास, बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोटिस्ट इज नॉट वेल डिफाइंड। मैंने बताया था शुरू में कि एक साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनिज्म एक प्रोटिस्ट हो सकता है और किसी दूसरे के अकॉर्डिंग वो अदर किसी ग्रुप को बिलोंग कर सकता है। सेकेंड नंबर हमारे पास आता है, सो इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड आता है, प्रोटिस्ट आर आइदर ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक। यस, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनोइड्स आर ऑटोट्रोपिक while slime mold and protozoans are always heterotropic. Chrysophyte, dinoflagellate and euglenoids are autotropic while slime molds and protozoans are heterotropic. फिर हमारे पास ये भी करेक्ट हो गया। थर्ड कंडीशन, सेल वॉल प्रेजेंस इज ए मेन कैरेक्टर ऑफ प्रोटिस्ट। जरूरी थोड़ी है, 5 में से 3 पर सेल वॉल प्रेजेंट है, फर्स्ट 2 पे सेल वॉल प्रेजेंट है, थर्ड में एक मतलब स्पेशल कंडीशन में प्रेजेंट होती है, बाकी सब में एब्सेंट है। सो ओनली 2 पर ऑलवेज प्रेजेंट होती है, क्राइसोफाइट और डाइनोफ्लेजिलेट पे। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देन हमारे पास आता है, ऑल वॉललेस प्रोटिस्ट आर इंक्लूडेड इन क्लास प्रोटोजोआ। भाई 3 क्लास बनाई है उन्होंने, 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया वॉललेस ऑर्गेनिजम्स को। यूग्लिनोइड्स के लिए यूग्लिना वॉललेस है, स्लाइम मोल्ड्स में वॉल एब्सेंट है और प्रोटोजोन्स में, सो इट इज ऑल्सो रॉन्ग। लास्ट है, प्रोटिस्ट आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। बिल्कुल करेक्ट है, यूग्लिना is the connecting link between animal or plant, while dinoflagellates are connecting link between prokaryote and eukaryote, and slime molds are connecting link between plant and fungi. So आप ये कह सकते हो कि ये सारे के सारे जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। ये भी तो हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स रॉन्ग हो गए, सी एंड डी, ए बी ई आर करेक्ट। A, B and E are correct. ये स्टेटमेंट हो गया प्रोटिस्टा के रेफरेंस। नेक्स्ट कंडीशन, एक प्रोटिस्टा के रेफरेंस में एक क्वेश्चन है कि ऑल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड अंडर प्रोटिस्टा बाय विटेकर। क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, यूकैरियोटिक, ऑल unicellular eukaryotic organisms are classified under protista by Whittaker, या शुरू में अपन बोल सकते हैं इन Whittaker classification all unicellular organisms are classified under protista। तो स्टेटमेंट रॉन्ग और राइट? रॉन्ग है, बिकॉज ईस्ट यूनिसेल्युलर विच क्लासिफाइड अंडर फंजाई, रॉन्ग हो गया। और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। आपने यूकैरियोट्स वर्ड यूज किया है, इसलिए प्रोकैरियोट को तो वैसे साइड में निकाल दिया हमने। यूकैरियोट्स में क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास में भी बड़ा पंगा है,
और उधर ईस्ट के साथ में। सो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाता है यदि हम इसमें लिखें तो ये था हमारे पास एक क्वेश्चन प्रोटिस्ट के रेफरेंस में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास की और वो है डाइनोफ्लैजिलेट। सेकंड क्लास आपके पास डाइनोफ्लैजिलेट। देखो नेम से पता चल रहा है डाइनोफ्लैजिलेट मतलब फ्लैजिला होते हैं 2, फ्लैजिलेट से नेम से पता चल रहा है फ्लैजिला प्रेजेंट है। सो फर्स्ट आता है हमारे पास इसका हैबिटेट। मोस्टली या इन जनरल दे अकर्स इन marine environment. They occurs in salty or saline water. So marine environment, most of organisms. On the basis of their photosynthetic pigment, they are yellow, brown, blue, red and green colored. Next, they possess a cell wall, but on cell wall stiff cellulosic plates are present. मतलब सेल वॉल तो है बट उसमें सेल्यूलोज जो होता है वो प्लेट की फॉर्म में होता है, ट्रांसवर्स प्लेट्स की फॉर्म में होता है, स्टिफ प्लेटेड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है दे पोजेसेस 2 फ्लैजिला, दे आर इक्वल और इन शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर, बट देयर पोजीशन इज डिफरेंट. वन इज लॉन्गिट्यूडनल एंड अदर इज ट्रांसवर्स. नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके बाद in favorable condition they rapidly divides and form many individuals, means they show मतलब ना reproduction explosion. So water becomes red color, it called red tide. If number of individuals are increased in aquatic environment, then they release some excretory substances, they are toxic for other organisms, so they become a reason of death of या cause of they become cause of death of other marine organisms. इससे फिश की डेथ हो जाती है. एग्जाम्पल है गोनियोलैक्स, इसका एग्जाम्पल है गोनियोलैक्स. तो दोस्तों एक बार हम डाइनोफ्लैजिलेट बात करते हैं इसकी. हाँ तो दोस्तों हमारी बात चल रही थी डाइनोफ्लैजिलेट की स्ट्रक्चर की. तो डाइनोफ्लैजिलेट्स कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर नजर आती. Dinoflagellates, outermost covering is made up of cell wall which possesses stiff cellulosic plates. ये आपके पास इस तरीके का एक एनवेलप होता है, इस पे ट्रांसवर्सली और जो है क्या प्रेजेंट होता है, स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं. दे possesses 2 flagella, वन इज लॉन्गिट्यूडनल, यहां से अराइज होगा, और अदर इज ट्रांसवर्स, इधर से अराइज होगा. सो एक की पोजीशन इस तरीके से वर्टिकल होगी लॉन्गिट्यूडनल और दूसरे की इस तरीके से हॉरिजॉन्टल मतलब ट्रांसवर्स. एंड फ्लैजिला आर अराइज फ्रॉम ए फ्रो ऑफ स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट्स. यहां पे एक फ्रो से ये जो है ना अराइज हो. इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास. तो बात हमारी चल रही थी कि डाइनोफ्लैजिलेट्स अकॉर्डिंग टू हैबिटेट, दे आर हैबिटेट mostly they are marine, means they occurs in saline water. सेकेंड नंबर था हमारे पास स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर की हम बात करें तो दे possesses a cellulosic cell wall, but cell wall is made up of stiff cellulosic plates. Stiff cellulosic plates. नेक्स्ट हमारे पास आता है
They possesses two flagella. Two flagella. One is longitudinal and other is transverse. But both flagella are equivalent in shape, size and structure. Same length, same structure, but their position is different. Then next आता है हमारे पास reproduction. Generally, when environment is favorable, then organisms are rapidly divides. This is called multiplication or population explosion. So in favorable condition, organisms show population explosion which produce many individuals and they provide color to see red. So it called red tide. So the cause of red tide. Example है गोनियोलैक्स. गोनियोलैक्स. इसके बाद एक अगला पॉइंट था. They are photosynthetic autotrophic organism. So on the basis of their photosynthetic pigment, they becomes yellow, blue, red, green or brown. Sexual reproduction occurs through zygote formation and they show zygotic meiosis. मैंने एक बात और कही थी आपको कि डाइनोफ्लैजिलेट्स आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट. इसमें एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कुछ फेजेस में इसका न्यूक्लियस जो होता है इट्स सराउंडेड बाय टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, बट जेनेटिक मटेरियल शो लेस ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसमें दिखाई नहीं देता, अपीयर नहीं होता, इसलिए हमने इसको इन दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक माना. तो ये था हमारे पास डाइनोफ्लैजिलेट्स. एग्जाम्पल था गोनियोलैक्स. तो दोस्तों आज हमने बात की प्रोटिस्टा के जर्नल कैरेक्टर्स की. देन उसके बाद हमने बात की, आपके पास जो है दो मेंबर्स आ गए, एक क्राइसोफाइट और दूसरा डाइनोफ्लैजिलेट, इनकी बात की. अब हम डाइनोफ्लैजिलेट के दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसी के साथ में. तो पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, consider the following statement. Consider the following statement. फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास, मोस्ट ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट्स आर occurs in marine environment. B, red tide occurs due to multiplication of dinoflagellates. C, according to their pigment, dinoflagellates appear as red, blue, black, brown, etc. D,
डाइनोफ्लैजिलेट्स possesses two horizontally arranged flagella. E. Stiff cellulosic plates are characteristic of cell wall of dinoflagellate. करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, करेक्ट स्टेटमेंट्स की बात करनी। फर्स्ट देखिएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में फर्स्ट है मोस्ट ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट्स आर अकर्स इन मरीन एनवायरनमेंट, बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट जो थे क्राइसोफाइट, ये मिलेंगे आपको मरीन और फ्रेश दोनों में, डाइनो केवल मरीन में, यूग्लिनोइड केवल फ्रेश में। इस तरीके से हम आगे बढ़े तो करेक्ट हो गया। सेकेंड आता है रेड टाइड इज अकर ड्यू टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट, रैपिड मल्टीप्लीकेशन ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट, बिल्कुल करेक्ट है। इसी की वजह से कलर रेड हो जाता है, सी का कलर रेड हो जाता है, रेड टाइड। अकॉर्डिंग टू देयर पिगमेंट्स डाइनोफ्लैजिलेट्स अपीयर एज रेड, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन। इस ब्लैक की वजह से स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ब्लैक नहीं होता, रेड, ब्लू, ब्राउन, ग्रीन, ये कलर्स आ जाते हैं इसके। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है डाइनोफ्लैजिलेट possesses two horizontally arranged, no, one horizontal and one longitudinal, so it is also wrong. And stiff cellulosic plates are characteristics of cell wall of dinoflagellate, it is also correct. तो आपके पास दो ऑप्शन, टू जो है ना स्टेटमेंट्स रॉन्ग हो गए। कौन कौन से? सी एंड डी, एंड ए बी ई आर करेक्ट। सो आंसर आ गया ए बी ई, और यदि नंबर्स में हो तो 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था डाइनोफ्लैजिलेट के रेफरेंस में। इसके बाद हम नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं यूग्लिनोइड्स के साथ। थैंक यू, एंजॉय द प्रोटिस्टा एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।